ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है. आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनिंग where I learned the knowledge of space alignment and balance. Then later on, I converted myself into event management where I learned public psychology along with detailing. Then I don't know how the destiny converted me into a energy aligned person. Logo एक shape और color का mismatch है. But when it comes to scientific logos are those logos which are designed using the knowledge of astrology, numerology, graphology, and color therapy, and which are aligned to the energies of the business person so that they get positive result in their business. एक लोगो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ पर डायरेक्टली असर करता है. रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, सबका अपना अपना अलग एक इमोशनल कनेक्शन बताता है. ग्रीन कलर डिनोट करता है हीलिंग पावर को, ग्रोथ को. वही येलो कलर एक एंजॉयमेंट को बताता है. ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी को डिनोट करता है एंड रेड कलर पैशन को डिनोट करता है. अच्छा कलर आपके बिजनेस को एम्पलीफाई कर देता है, बिजनेस की एनर्जी को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है. कभी कभी लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर अच्छा दिखता है इसलिए वो ब्लैक कलर अपने लोगो में डाल देते हैं. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो कुछ नया और आपने ब्लैक कलर डाल दिया तो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, बिकॉज यू आर न्यू टू द फील्ड. आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो. Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a very special guest, Saraswati Agrawal ji, a multi-faceted creative and spiritual consultant. Starting her career as a interior designer and event manager, Saraswati ji's journey took a transformative turn through the discovery of numerology during a challenging time with her son's academics. Now a professional numerologist and scientific logo consultant, she uniquely blends her expertise in design with numerological insights to create energetical aligned logo and personal transformation. She has helped guided and transformed many lives through wristwatch therapy, numerology, graphology, tarot, and harmonized name, time, mindset, and visual identity to unlock true potential and success. On today's podcast, she will be sharing her journey and insight on scientific logo. Very warm welcome, Saraswati ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, sir. Thanks a lot for inviting me and giving an opportunity to express my views and my knowledge to others. तो मैम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विथ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्सनल. जब मैं सवाल पूछूं आपकी जर्नी के बारे में, हाउ डिड योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनर एंड इवेंट मैनेजमेंट टू एनर्जी बेस्ड कंसल्टिंग इन्फ्लुएंस योर अप्रोच टू साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं. ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है. आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनिंग where I learned the knowledge of space alignment and balance. Then later on, I converted myself into event management where I learned public psychology along with detailing. Then I don't know how the destiny converted me into a energy aligned person, because दूर दूर तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि I will do something related to occult science. But destiny के आगे we can't do anything. I don't know how I got attracted toward this. I started learning one science, then other, and got so much interested in this that now I have learned more than 20 modalities into this. So when I got to know about all this science, then I used my knowledge of color, shapes, balancing science to combine it along with my scientific logo designing. It is then I realized that this designs becomes more powerful with the knowledge of our energy consulting field. So now I don't only create design, but also I help to align the energies for the business growth. Great, ma'am. Ma'am, taking today's topic, what is scientific logo in your words and layman's language में जब बात करूं, so scientific logo कितना important है, क्या होता है, कितना इफेक्ट होता है, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. So as you know, इस साइंटिफिक लोगो से पहले ये जानना जरूरी है कि लोगो क्या है. लोगो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर्स, राइट. जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो कलर और शेप के साइंस को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम रेड कलर देखते हैं तो हम उसे अर्जेंसी को डिनोट करते हैं, राइट, या तो फिर स्पीड से रिलेट करते हैं. वही जब हम कुछ हार्ट शेप का देखते हैं, वी रिलेटेड टू लव साइन, राइट. तो सिमिलरली लोगो एक शेप और कलर का मिसमैच है. बट व्हेन इट कम्स टू साइंटिफिक लोगो,
Scientific logos are those logos which are designed using the knowledge of astrology, numerology, graphology, and color therapy, and which are aligned to the energies of the business person so that they get positive result in their business. Because एक लोगो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ पर डायरेक्टली असर करता है. सो अगर आपका लोगो पावरफुल है तो आपका बिजनेस भी पावरफुल है. सो दिस इज द definition of a scientific logo. Great, ma'am. I'm taking a personal question in context of logo only. Can you share a personal moment when you realized a logo energy was affecting your business growth? Yes, sure. ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं न्यूली एंटर हुई थी साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग में. देयर वाज अ क्लाइंट हु वाज इनटू अ ज्वेलरी बिजनेस. उनका बिजनेस लोगो की एनर्जी मिसमैच थी. व्हेन वी एनालाइज्ड इट वी रियलाइज्ड कि उनकी एनर्जीज उनके बिजनेस से अलाइन नहीं हो रही है. देयर वर फ्यू कलर्स एंड शेप जो उनके व्यू से मैच नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से उनको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा था. देन वी रीडिजाइन द लोगो एंड विद इन 6 months उनका सेल्स इंप्रूव हो गया एंड दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन देयर बिजनेस. It is then I realized how a scientific logo is very important. It plays a very important role in aligning your business. It is a magnetic tool, in fact. You have talked about shape and geometry. So please explain how shape and geometry plays an important role, effectiveness in that particular logo की जब हम बात कर रहे हैं तो. Look, shape and geometry directly आपके subconscious mind पे इफेक्ट करता है. There are different types of shapes as you know. जैसे कि there is a square shape जो कि stability को दिखाता है, strength को दिखाता है. Round shape denotes unity power. There is a triangle shape which shows growth. So depending upon your business nature, shape is to be decided, right? It is industry specific. It is not that कि इसको ये कलर पसंद है, इसको ये शेप पसंद है और उसको वो शेप दे दिया. It is not that way. Before deciding कि कौन सा शेप कौन से इंडस्ट्री को सूट करेगा, we have to analyze different aspects in their business कि exactly उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बिजनेस नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी सजेस्ट द शेप्स. सो इवन शेप प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल. मैम आपने कलर के बारे में बताया, कलर साइकोलॉजी के बारे में मैं इसी कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगा. प्लीज शेयर हाउ कलर साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू ब्रांडिंग थ्रू लोगोस. कितना इफेक्ट आता है, क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं कलर्स, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए. यस सर. जैसे मैंने अभी आपको शेप्स का इंपॉर्टेंस बताया, वैसे ही कलर्स का भी अपना एक इम्पोर्टेंट है. क्रिएट्स एन इमोशनल फीलिंग बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. जैसे कि रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, सबका अपना अपना अलग एक इमोशनल कनेक्शन बताता है. ग्रीन कलर डिनोट करता है हीलिंग पावर को, ग्रोथ को. वही येलो कलर एक एंजॉयमेंट को बताता है. ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी को डिनोट करता है एंड रेड कलर पैशन को डिनोट करता है. So depending upon your industry, the colors are decided. Oh, great ma'am, great ma'am. तो एक अच्छा कलर आपके बिजनेस को एम्पलीफाई कर देता है, बिजनेस की एनर्जी को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है. Talking very specifically about your consulting guiding, so what is the first thing you analyze when a client comes to you with a logo problem, designing के लिए जब आपके पास आते हैं, सो आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं एंड हाउ यू क्रिएट दैट वेरी मच कस्टमाइज्ड, वेरी मच डिटेल्ड की जो ग्रोथ है, बिजनेस है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप कैसे फिर उसको गाइड करते हैं. मैं इसके बारे में प्लीज बताइए. देयर इज नॉट वन थिंग जो कि हमें एनालाइज करना होता है. देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे मैंने कहा साइंटिफिक लोगोस आर दोस लोगोस व्हिच आर डिजाइन यूजिंग द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड कलर थेरेपी. तो जब कोई लोगो हमारे पास एनालाइज करने आता है तो हम ये देखते हैं क्या उनका ब्रांड नेम न्यूमरोलॉजी से अलाइंड है, क्या वो ब्रांड नेम उनके लिए लकी है एज पर द डेट ऑफ बर्थ, या उनके बिजनेस नेचर को सपोर्ट कर रहा है. और एल्स हम ये देखते हैं कि जो फॉन्ट उन्होंने यूज किया है क्या वो उनको हेल्प कर रहा है एग्जीक्यूशन में, क्या कलर्स जो यूज किया है, शेप यूज किया है, क्या वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स वी नीड टू एनालाइज एंड अकॉर्डिंगली वी टेल देम कि एग्जैक्टली आपके लोगो में ये इशू है एंड यू नीड टू करेक्ट इट. मैम आजकल बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे टूल्स हैं एंड पीपल और अदर से बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, they many a times feel that कि okay ये अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, ये लोगो ऐसा अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं. So can a poorly designed logo be the reason for a business not growing? Yes, sir. It can be a big reason for your business financial. It can affect your financial health of your business because when you design your logo yourself, तो आप क्या करते हो, आपके likes, dislikes वो लोगो में डाल देते हो depending upon your mindset.
कोई भी बिजनेस के लिए ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट थिंग इज योर मंत्रा, सेकेंड इज योर यंत्रा एंड थर्ड इज योर तंत्रा. मंत्रा होता है आपका माइंडसेट. व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट योर बिजनेस. आपका माइंडसेट क्या है, आपका बिजनेस करने का तरीका क्या है, और ये माइंडसेट के अकॉर्डिंगली पर्सन अपना यंत्रा बनाता है, जिसे हम कहते हैं लोगो. लोगो इज योर यंत्र ऑफ योर बिजनेस. तो वो अपने सभी लाइक्स डिसलाइक्स वो लोगो में डाल देता है. जाने अनजाने में जो वाइब्रेशंस वो उसके लोगो में डालेगा वही वो अट्रैक्ट करेगा. सपोज वो लोगो अच्छे वाइब्रेशंस कैरी कर रहा है तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर वो लोगो में नेगेटिव वाइब्रेशन है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, डिपेंडिंग वो लोगो क्या वाइब्रेशन कैरी कर रहा है. सो नोइंगली अननोइंगली वो वाइब्रेशंस वो उस चीजों में डाल रहे हैं, लोगों में डाल रहे हैं, बिकॉज उन्हें वाइब्रेशन लेवल पे लोगों का साइंस पता नहीं है. दे आर जस्ट लुकिंग इन द विजुअल वे, द एस्थेटिक वे, कि बस लोगो अच्छा दिखना चाहिए. बट व्हेन वी एज एन एक्सपर्ट डिजाइनर लोगो, हम ये देखते हैं विजुअल के साथ साथ हम उसमें एनर्जीज भी डालते हैं. तो एनर्जी अलाइनमेंट इज ऑल्सो डन सो दैट वो लोगो आपके लिए यूजफुल हो, सक्सेसफुल हो और लकी भी हो, राइट. और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जैसा आपका लोगो होगा वैसा ही आपका वाइब्रेशन होगा और वैसा ही आपका एक्शन होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ लोगो विद एन एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट. एक और मैं इसी से कनेक्टेड सवाल पूछना चाहूंगा. सो हाउ डू यू अलाइन द लोगो टू ए बिजनेस कोर पर्पस या विजन के साथ? Right. It's a very well question you have asked me. Look, different business के different visions होते हैं. They want that visions to be completed as a mission. So logo acts as a mission for your vision to be completed. Right? Because हम उसमें वैसे vibrations डालते हैं. Look, before designing any logo, हम पहले 1-to-1 सामने वालों से कंसल्ट करते हैं, बिजनेस पर्सन, द वन हु इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, कि एग्जैक्टली उनका बिजनेस करने का तरीका कैसे है. हाउ डू दे इम्प्लीमेंट द थिंग्स. आर दे गुड इन प्लानिंग और दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद एम्प्लॉयज या मार्केटिंग इशू है. अकॉर्डिंगली हम उनके विजन को अलाइन करने में, एनर्जी के साथ अलाइन करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोगो. आई एम टॉकिंग और अदर से इंटीग्रेटिंग अनदर मॉडलिटी. जब मैं वास्तु की बात करूं, सो हाउ वास्तुशास्त्र प्ले अ रोल इनटू डिजाइनिंग साइंटिफिक लोगो. मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. Yes, even वास्तु is very important as per the scientific logo. जब हम घर के वास्तु की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर घर की डायरेक्शन रॉन्ग हो एज पर वास्तु तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन देगा. सिमिलरली अगर आपका लोगो भी वास्तु से अलाइन नहीं है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. तो एज पर वास्तु देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, जैसे आपको पता होगा एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है. तो अगर आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली आप आपके लोगो में वो एलिमेंट्स डालते हो, वो कलर्स एड ऑन करते हो एज पर वास्तु, देन द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. So this is how we use the knowledge of Vastu to design a logo. And also this Vastu knowledge is used while designing a visiting card, which is called as Vastu aligned visiting card. When we design a visiting card, we see कि कौन से direction में क्या colors आना चाहिए, which will help you in good stability, which will help you to have positive cash flow. This is how even Vastu is applied in visiting card. ग्रेट मैम. मैम एक और सवाल मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों का होगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का होगा, यंग्स एंटरप्रेन्योर का भी होगा ये, कि इन योर एक्सपीरियंस हाउ डू फॉन्ट इम्पैक्ट द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ ए ब्रांड ऑडियंस, और ये सेम लोगों में कैसे झलकता है ये? Yes, as you know कि graphology is also one of the part of designing a scientific logo. So fonts are very well related to graphology. When any logo is designed, font उसमें ये बताता है कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा होगा. राइट. देयर आर फ्यू फॉन्ट्स जो कि बहुत ही कर्वी नेचर के हैं, विच शोज क्रिएटिविटी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. एंड देयर आर फ्यू फॉन्ट्स जो कि बोल्ड है, बहुत पॉइंटेड है, शार्प है, जो कि आपके एनालिटिकल स्किल को इम्प्लीमेंट करता है. राइट. वो आपको और बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करता है. सो डिपेंडिंग आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका बिजनेस नेचर क्या है, the fonts are selected. For example, if you say कि मेरा थोड़ा confidence level low है, मेरी analytical skill poor है, so we will use those fonts which will help you to improve your analytical skill, जिससे आपका decision making fast होगा और execution भी fast होगा. Suppose you're designing a logo for a playgroup school or something, then use a curvature font which will create mood, which will create a friendly environment in the atmosphere. Oh, great. Yeah. It is industry specific as well as person specific. That is a really good thing. Yes. मैम एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा. What are the signs? ये बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत बार मरीज को समझ में नहीं आता है कि उसको दवा की जरूरत है या थेरेपी की जरूरत है या मेडिकेशन की जरूरत है. सो व्हाट आर द साइंस दैट अ बिजनेस नीड्स ए साइंटिफिक लोगो एनालिसिस? यस, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी पूछते हैं कि व्हेन शुड वी एनालाइज द लोगो. देखो, जब आपका सर दुखता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ एक्सरेज निकालो या सीटी स्कैन निकालो ताकि उनको एग्जैक्टली समझ में आए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या चीजों पे काम करना चाहिए. सिमिलरली, अगर जब आपको ऐसा फील हो कि यस मेरे बिजनेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या एम्प्लॉयज का इशू आ रहा है या तो फिर इंक्वायरीज आ रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, आप प्रीमियम सर्विस तो दे रहे हो लेकिन प्रीमियम क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है या लॉसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं. इफ यू थिंक दिस आर हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, then there is a need you should go and consult to an expert कि exactly आपके लोगों में क्या issue है, right? So that they can give you proper guidance and help you to get out of it. I'm moving to the next question, my favorite one. Ma'am, please share client success story where a logo transformation led to the growth. Ma'am, वो क्या वाक्या थे, क्या problems आ रही थी आपके clients को, and how you have guided them and transformed their business? Yes. Yes, I remember one of my client is from Pune. They are into manufacturing business with the name Storycar. They had initially designed a logo from my side, which was for a startup. When they started their business, they had a boom in their business. They did very well in their business. But after a few years, they changed their logo color so that they get more identity. They felt we need to improve our logo. So they changed their logo unknowingly they attracted some troubles in their business because of the colors that they had changed the logo from. They had used those colors which created problem in the internal employees. Employees आते थे, 2 दिन रुकते थे, चले जाते थे. They used to learn the things and they used to live it. So they had to face so much of problem. Then again they called me and they showed me the logo. Then I suggested them, because of just one single color, you're facing this problem. And believe me, they changed the color and within 3 days they noticed कि उनके एम्प्लॉयज फिर से आने लगे हैं. जो काम छोड़ के गए थे वो खुद से ही फिर से आ गए कि they said yes we want to continue the work. It created magic in their business. Yes. So what is that color जो आपने अभी बताया? ये ऐसा कौन सा कलर है जो मेरे ख्याल से सारे बिजनेस को ये अवॉइड करना चाहिए? सर वो कलर है लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर उन्होंने यूज किया था, जो कि ये बताता है कि आपके एम्प्लॉयज ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, आए तो वो आपसे काम सीखेंगे और चले जाएंगे. फ्रेशर्स आएंगे, काम सीख के चले जाएंगे. सो व्हेन आई टर्न्ड दैट कलर इनटू डार्क ब्लू, उनका वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया. ग्रेट. मैम, और कोई किस्से और कोई ऐसे स्टोरीज? Yes. One more story is regarding a beautician. She started her work as a normal beautician. She designed a logo from my side. She was doing her business without a logo. She asked me to design a logo, and she was into this field since long time, since around 8 to 10 years. And when I designed a logo for her, she became so famous कि अभी उसके पास clients out of अहमदनगर भी आते हैं. I'm from Ahmednagar, as you know. So she get clients from all around the city. Oh, great. And she's very happy in her profession. Oh, great. Yes. Ma'am. Ma'am, moving to the next question and getting into more into the technicality of designing a logo. So how do you blend artistic creativity and scientific rigor in your logo work? Well, I would like to answer this in one line. Science is a base, it's a foundation, and design is a face. So when we blend both the things, it creates a powerful tool. Because कोई भी लोगो जब हम बनाते हैं वो दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, प्लस उसके वाइब्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, right? So that it gets emotionally connected with your client and they get trusted with your work. So that's the main thing. Ma'am, talking more about vibration. So what do you look for when you are evaluating vibrational energy of a logo? मैम, वो आप क्या पैरामीटर्स लेते हैं, कैसे आप देखते हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. Look, there are different ways of checking the vibration. For example, अगर आपके लोगो में वाटर एलिमेंट है जबकि आपका बिजनेस फायर एलिमेंट से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, एक सामने वाला पर्सन आया, ही वांट्स टू डिजाइन अ लोगो फॉर अ होटल इंडस्ट्री. ही इज ऑलरेडी कैरिंग अ लोगो विद अ वाटर बेस्ड एलिमेंट, तो वो लोगो उसको सूट ही नहीं करेगा. So we need to check the element, we need to check the shape, we need to check the color. क्या वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, क्या वो एलिमेंट उसको सूट कर रहा है,
क्या उसके इसमें एयर एलिमेंट है? अगर नहीं है तो हाउ टू एक्टिवेट इट, बिकॉज लोगो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। उसमें फेमिनाइन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होता है और मेस्कुलाइन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होता है। So I would like to give one example of Videocon company. It's a most known company. जब Videocon company ने अपना logo change किया, before their logo was having too much of masculine energy, and when they changed the logo, they had too much of feminine energy. Okay. Before, the analytical skill was very good before changing the logo, but as soon as they changed the logo, they tried to beautify the logo using more of feminine energy in the fonts also and in the logo also. And the logo is open from down, which shows loss of opportunities, loss of resources. Oh. So as soon as they changed the logo, they started facing losses because उनका ध्यान more of product beautification पे जाने लगा rather than the analytical skill. Okay. So this is how change in a logo is very important as per the requirement. So knowingly or unknowingly, it's better to do it knowingly exactly what is more important for you, right? Right. Very true, very true. Now, getting back to your personal journey, मैं जब बात करूं, so how has your work changed after combining numerology with graphic designing? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. Look, numerology and graphic designing are two different fields, but I combined it together. Look, numerology is a backbone of logo. जब हम numerology का science logo में use करते हैं, तो your logo becomes more powerful. The reason behind this is every logo has a name, a brand name होता है. अगर आपका brand name numerology wise आपके personal date of birth से aligned है, the owner के साथ वो aligned है उसके energies, तो वो आपको success rate increase कर देता है. So this is how numerology also is very important in designing a logo. Great, ma'am. मैम और थोड़ा सा एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, नॉट फ्रॉम द ब्रांड और द क्लाइंट, मैं कस्टमर साइड से पूछना चाहूंगा, कैन शेप एंड कलर कॉम्बिनेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्ट करता है कस्टमर के ट्रस्ट को एंड ब्रांड रिकॉल को? क्योंकि एट द एंड किसी भी बिजनेस को रिपीटेड कस्टमर और कस्टमर उनका बेस जो है और बढ़े, यही चाहते हैं. सो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. Yes, sir. Shapes and colors are very important as per the industry specific. Choose करना पड़ता है. For example, अगर आप देखोगे in most of the automobile industries, most of the logos are in round shape. For example, अभी हाल ही में SUV की जो cars आई हुई है, the logo of it, if you can see, it's in circle shape. Audi का भी circle है. Mercedes is also in circle. The reason behind this, circle is a shape जिसमें यू कैन कीप योर सीक्रेट्स. ये ऐसी इंडस्ट्रीज है अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी लीक आउट कर दे तो वो कॉपी हो जाएगी. सो सर्कल शेप्स हेल्प्स यू टू कीप सीक्रेट्स ऑफ योर बिजनेस. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस नेचर कि कौन सा शेप आपको सूट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिलेटेड टू सम रियल एस्टेट और लैंड प्रॉपर्टी, देयर अ स्क्वायर शेप विल हेल्प यू because it is related to earth element. Okay. Suppose you are related to, say, hotel industries, then air element will help you to activate your fire element. It depends upon business to business exactly what is the business nature, and accordingly we can suggest the shape and color. Now the thing I discussed about is shape. Same way, even color plays an important role, as I talked earlier. Suppose you're starting something new, or starting में if you give black color to a person who's new into the business, then black color will not suit to that person. वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा बिकॉज ब्लैक कलर सूट्स टू दोज जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हो, राइट. सिमिलरली अगर हम किसी ज्वेलर्स को जो कि बहुत ही अपने फील्ड में स्ट्रांग है, हैज इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 10 to 15 years, और हम उसको दे दे सादा से ग्रे कलर, he won't be able to attract premium clients. Okay. Right. The requirement of the jewelers is to attract premium clients. So when we change the colors from this, one of the example of my client, when I changed the color from gray to golden, they noticed कि the sales have increased. Premium clients आना शुरू हो गए. पहले inquiries आती थी, लोग आते थे, देखते थे, जाते थे या छोटा मोटा कुछ लेके जाते थे. But when I changed the color to golden color, their sales increased. Especially premium clients का जो flow था वो बहुत ही increase हो गया. So your logo acts as a silent sales maker. मैम इसी कंटेक्स्ट में आपने जैसा बताया, फॉर अ स्टार्टअप, फॉर अ न्यू बिजनेस एंड एस्टैब्लिश ब्रांड, सो इनमें कैसे एनालिसिस होता है और इन दोनों का एनालिसिस कैसे डिफर करता है? मैम इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए. यस सर. देखो, जो स्टार्टअप के लिए आएंगे दे वांट कि उनका बिजनेस अभी नया है और उनको स्टार्ट करना है
तो उसके अकॉर्डिंगली उनको एनर्जीज देनी पड़ेगी ताकि वो एनर्जीज उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। Right, एंड जो right. ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका पर्पस डिफरेंट है, उनका बिजनेस तो चल रहा है बट दे वांट स्टेबिलिटी, Okay, they want right. stability in their business. There the energy and alignment will be different. So in both the cases the science will be different, मतलब shape and colors will be different in both the cases. मैम एक बार मैं एक और पूछना चाहूंगा सवाल आपसे रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर एंटरप्रेन्योर्स स्टक आफ्टर सेवरल रीब्रांडिंग अटेम्प्ट्स? क्योंकि बहुत बार आजकल ऐसा देखा जाता है ऑन ए शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत बार रीब्रांडिंग होती है। सो मैम उनके लिए आपकी क्या एडवाइस, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। Yes, there are many entrepreneurs जो बहुत रीब्रांडिंग करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। सो माय एडवाइस इज इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्रगलिंग, आप एक बार आपका लोगो एनालाइज कर रही है बट विद एन एक्सपर्ट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली आप कहाँ स्ट्रक फील कर रहे हो। लुक, हार्डवर्क तो इम्पोर्टेंट है, हार्डवर्क के साथ साथ जब हम हमारे लक को भी अलाइन करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। सो I think each and every person should align their energies with their subconscious mind. Subconscious mind से related है आपका लोगो। So आपके subconscious mind के accordingly आपका लोगो डिजाइन होना चाहिए। Because as I told, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Because आपका मंत्र is your mindset, यंत्र is your logo and tantra is your strategies, goals that you're planning for your logo. जब आपका मंत्र, तंत्र एंड यंत्र टुगेदर अलाइन होता है तो आपके एक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो मैम हाउ फ्रीक्वेंटली या किस स्टेज पे किसी भी बिजनेस को अपने लोगों को रिव्यू करना चाहिए फॉर द एनर्जी, फॉर द मोर इम्प्रूवमेंट? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको लोगों पे ही काम करना है। सिर्फ साइंटिफिक लोगो इज नॉट ओनली द वन थिंग। बिफोर द साइंटिफिक लोगो, जब कोई पर्सन हमारे पास आता है टू डिजाइन अ न्यू लोगो और टू फॉर द लोगो करेक्शन, सो वी गिव अ ओवरऑल कंसल्टेशन राइट फ्रॉम द सिग्नेचर। हम उनका सिग्नेचर एनालाइज करते हैं बिकॉज सिग्नेचर इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उससे पता चलता है एग्जैक्टली पर्सन का माइंडसेट कैसा है। सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू रेगुलेट देयर माइंडसेट ताकि उनके एक्शंस पॉजिटिव हो सकता है। उनका काम करने का तरीका बराबर नहीं है, उसके वजह से वो प्रॉब्लम इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। उनका फाइनेंशियल जो रेशियो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। जब हम उनके सिग्नेचर पे काम करते हैं यानी उनके सबकॉन्शियस लेवल पे, उनके माइंड पे भी काम करते हैं अलॉन्ग विद द लोगो डिजाइनिंग, तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बिकॉज जो सिग्नेचर में आप फॉन्ट यूज कर रहे हैं, जो ग्राफोलॉजिकल पार्ट है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बताता है कि एग्जैक्टली पर्सन का माइंडसेट कैसा है। तो जब माइंड चेंज होगा तब लोगो भी इफेक्ट करेगा बिकॉज लोगो के वाइब्रेशन आपके माइंडसेट से जुड़ा हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट कर रहा है। नॉट ओनली यू बट योर क्लाइंट्स, योर एम्प्लॉयज ऑल्सो। राइट, राइट। So a signature remedy is the most important thing that we give in our consultation. Ma'am, talking more about this thing, so how do you personalize a scientific logo very specifically individual's name या career पे? Look, it is not only the name, not only the career, it depends upon person to person exactly उनका business nature क्या है। Suppose a person comes to me and says he wants to design a logo, redesign a logo and align it as per his energy. तो हम सबसे पहले उनको एक मैनिफेस्टो फॉर्म देते हैं, which they need to fill it, ताकि हमें उनके बारे में सब कुछ पता चले exactly उनका पूरा नेम क्या है, so that we can align it as per numerology, what is the present turnover, what are the future targets, उनके clients कैसे हैं, उनका प्राइसिंग कैसा है, उनके क्या क्या सर्विसेज है, वो किस टाइप के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कितने वर्कर्स उनके पास है, वो कौन से सिटी में काम कर रहे हैं, आजू बाजू की उनकी सिटी कैसी है, उनकी लोकेलिटी कैसी है। देन वी हैव अ 1-to-1 टॉक विद देम टू नो मोर अबाउट देमसेल्फ कि उनका बिजनेस करने का तरीका कैसे है। वी ऑल्सो एनालाइज द सिग्नेचर। सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक ही चीजों पे काम नहीं किया जाता है। वी हैव टू एनालाइज डिफरेंट थिंग्स कि एज पर एस्ट्रोलॉजी उनके लिए लकी कलर क्या है, एज पर न्यूमरोलॉजी क्या उनका नेम अलाइंड है या नहीं, इफ नॉट हाउ टू अलाइन द नेम सो दैट उनकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो और उनकी एनर्जी अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस इज रिलेटेड टू वीनस, यू आर इन से सम मेकअप आर्टिस्ट और यू आर इनटू designing a product which is related to beauty, that is related to Venus. So we need to bring the brand name to the compound of 6 because 6 is a number of Venus. So we need to see many multiple things before designing a logo. Then name is designed,
Then the vibrations are set. Then we need to analyze कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स जाएगा, कौन सा शेप जाएगा, कौन सा कलर जाएगा, क्या उनके क्लाइंट्स रेफरेंस से है या they want to attract new clients. So there are multiple things, and after analyzing everything, we deliver a final scientific look. Great, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, moving to the next question, more technical and a difficult one. What is your process for identifying hidden blocks in logo or visual identity? Yes, there is not only a one way, as I told you before also. There are various ways. Yes, one of the way is using tarot reading also. I do tarot reading to analyze check the energy of the person की energy कैसी है. So that I can deliver it in a better way, whatever I am doing it. Wow, great, great, great. इसी कंटेक्स्ट में मैं अब अदर साइड में जाना चाहूंगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए एम्प्लॉय होते हैं. सो कैन ए लोगो चेंज ट्रांसफॉर्म एम्प्लॉय मोरल विथ एन ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज यस, लोग काम कर रहे हैं, आते हैं, छोड़ के जाते हैं. दैट इज वन ऑफ द फैक्टर जो आपने कवर किया. बट वहां पे भी कितने आसानी से, अच्छे से वो हार्मोनी है, दे आर अलाइन विथ द विजन मिशन ऑफ द कंपनी. मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. एम्प्लॉयज का होना, उनकी हैप्पीनेस, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सब भी आपके लोगों से पता चलता है व्हेन वी एनालाइज इट. सो जब कोई बोलता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे जब कोई लोगो हमारे पास आता है एंड दे से कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट माय लोगो, और हम उनको बताते कि शायद आपके एम्प्लॉयज में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, या आपके एम्प्लॉयज टिकते नहीं है, या आपका एक प्लानिंग तो अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है, तो वो लाइक उनको ऐसा लगता है कि अरे आपको इतना सब कुछ कैसे पता है, क्या आप कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हो, ये कैसा साइंस है. तो इट्स दैट वे. तो एक लोगो देख के पता चलता है कि एग्जैक्टली उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है. अगर वो ऐसा इश्यू दिखाई देता है, देन वी सॉल्व इट यूजिंग द फॉन्ट्स विच विल हेल्प देम, using the shape which will help to solve this problem. So that is the reason कि before designing any logo हम one to one consult करते हैं सामने वाले से exactly उनका issue क्या है, right? Issue क्या है वो हमें तो पता चल ही गया exactly logo देख के. But जब वो और discuss करते हैं, we are able to give the proper output to the person कि exactly क्या problem है, क्या issue है, and accordingly we can give the solutions to it. Oh, great, great, great. Ma'am, moving to the next question, a personal one, and yes, how that got connected to your professional life. So, how does your background as an interior designer help inform you the sense of harmony into logo? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. जैसे I said कि interior designing is a field in which I learned how to balance colors, space balancing सीखा है, knowledge of color psychology, how color psychology plays an important role on your subconscious mind. So even in logo, since logo is a combination of color and shape, the same principles helped me to be used in the consulting field, where I realized कि yes, the thing which I had learned in my interior designing is applied to the logo designing also. Moving to the next question, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहेंगे या इसको एक बार फिर से सुनेंगे. How a person, how an entrepreneur, how any business owner or person, individuals की मैं बात करूं, so they can determine their logo vibration for that particular business or that particular sector की मैं बात करूं, वो जिस भी सेक्टर में है वो राइट है कि नहीं है, वो ऐसे क्या पॉइंटर्स हैं, मैम इसके बारे में बताएं जिससे जनरल लोग पहचान सकें. Yes, I will help you out with 5 basic things which will help you to analyze your logo to yourself. But anyways, doing it anything without knowledge is always dangerous. Half knowledge is always dangerous. But still you can check it out with few points which will help you out to know more about your logo. The first most important thing is avoid using cuts in your logos. लोगो जितना सिंपल रहेगा उतना इफेक्टिव रहेगा. Simplicity is a key to success. तो जब वो क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, सिंपल रहेगा, तो आपका मैसेज ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प होगा, जैसे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट. एंड सेकेंड थिंग, जो फॉन्ट है आपका, इट शुड बी वेरी सिंपल, नीट एंड क्लियर. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डिजाइन अ गुड लोगो, इफ यू आर अ न्यू स्टार्टअप, यू आर डूइंग अ न्यू स्टार्टअप, जस्ट यूज अ गुड font for your logo, a simple good font which will really help you out. So these are the few things. And thirdly, the logo should not be open from down. If it's open, it shows that you're losing your opportunities, you're losing your resources, right? And avoid using red color. So red color is such a thing that is suitable not for every industry.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड कलर किसी ज्वेलर्स को दे दोगे तो वो एक छोटी छोटी इयररिंग्स और यही बेचता रहेगा, वो बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर आपका माइंडसेट है कि आपको क्वांटिटी में सेल करना है विद गुड प्राइसिंग, देन रेड कलर हेल्प नहीं करेगा। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इफ यू थिंक कि आप आपके बिजनेस में आपका स्किल बहुत अच्छा है, योर एक्सपर्टाइज इन योर वर्क, देन यू कैन यूज ब्लैक कलर। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर अच्छा दिखता है इसलिए वो ब्लैक कलर अपने लोगो में डाल देते हैं। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो कुछ नया और आपने ब्लैक कलर डाल दिया तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, बिकॉज यू आर न्यू टू द फील्ड, आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो। राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाइट जो कलर है, इट शोज डेडिकेशन। इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू और उसमें आपने बहुत ज्यादा व्हाइट डाल दिया, बिकॉज व्हाइट डेडिकेशन को डिनोट करता है। और जब हम कुछ नया स्टार्टअप करते हैं तो ओनर का अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने व्हाइट डाल दिया और काम दूसरे के भरोसे पे छोड़ दिया तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कलर का चुनाव बहुत ही स्पेसिफिकली करें, बिकॉज राइट कलर इज राइट सक्सेस, राइट शेप इज राइट सक्सेस। जैसा कि मैम आपको आपके बहुत सारे मॉडलिटीज के थ्रू भी लोग जानते हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी और बिजनेस ब्रांडिंग। सो ये दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं? ओनर्स का हो गया या कस्टमर केयर की जो नंबर्स होते हैं, ये कैसे वो बिजनेस से कनेक्ट होते हैं? मैम इसके बारे में भी प्लीज बताइए, हाउ दे कनेक्ट विद द बिजनेस ब्रांडिंग। सर, एज आई टोल्ड यू, नंबर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Mobile number is related to numbers, right? It is full of numbers, and each and every number has its own vibration, has its own positive points and negative points, depending which number is lucky for you, right? So it depends upon business to business and person to person. Suppose as per your date of birth, your lucky number is 5, right? And 5 is missing in your grid, and your business is related to marketing. Then we suggest them bring your mobile number to 5. Right, depending upon your requirement. Suppose your requirement is money, आपका मनी फ्लो वीक है, you want to attract your Venus, and 6 is lucky for you. We suggest the person to bring the mobile number to 6. But bringing only on a good compound is not the thing. The internal combinations of your mobile number also makes a lot of difference. Great. Suppose you're carrying multiple 8 in your business, वो आपको हार्ड वर्क बहुत कराएगा, स्ट्रगल बहुत कराएगा, बिकॉज 8 नंबर शनि शनि देता है, स्ट्रगल्स देता है, डिलेज देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कंपाउंड्स यूज कर रहे हो आपके मोबाइल नंबर में और उसका टोटल कौन से गुड कंपाउंड पे ला रहे हो। सो इट्स अ साइंस, अगेन अ डीप साइंस, which I cannot tell everything over here. Great, ma'am. मैम आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं एक बार फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा, वी वर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक लोगो फ्रॉम द एक्सपर्ट सरस्वती अग्रवाल जी, जो कि सिर्फ साइंटिफिक लोगो नहीं बल्कि उसको कनेक्ट करते हैं रिस्ट वॉच थेरेपी से, न्यूमरोलॉजी से, ग्राफोलॉजी से, टैरोट से, नेम से, टाइम से, एंड द विजुअल आइडेंटिटी, जो आपको हेल्प करता है पोटेंशियल आपका ट्रू अचीव करने में और सक्सेस के लिए। मैम आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछना चाहूंगा आपसे, वेरी कॉमन या वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दैट कॉमन मिस्टेक जो कि एक बिजनेस ओनर करते हैं जब भी वो डिजाइन करते हैं देयर लोगो, जो आपने आपके इतनी बड़ी जो आपकी तपस्या है, यात्रा है, आपने इतने सारे लोगों बिजनेस को आपने गाइड किया है। सो मैम वो कॉमन मिस्टेक्स थी, मैम इनके बारे में प्लीज बताइए। द कॉमन मिस्टेक इज, लोग सोचते हैं कि लोगों पे इन्वेस्ट क्यों करें। लोगो एक छोटी सी सिंपल थिंग है, बट दे फॉरगेट कि लोगो इज अ फेस ऑफ योर बिजनेस, इट इज अ मेन आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड। जैसे सिग्नेचर आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही आपका लोगो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है। सो लोगो आपके लिए दिखता है, लेकिन हमारे लिए लोगो आपके लिए काम करता है। So when you design a logo with an expert, I suggest everyone to design the logo or to get your logo analyzed from an expert, ताकि आपको जो रिजल्ट, आप अभी हार्डवर्क कर रहे हो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो आपका लोगो करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ माइंडसेट ऑफ अ पीपल कि लोगो हम खुद से बना लेंगे या तो किसी आर्टिस्ट से बनवा लेंगे, जो कि आर्टिस्ट 4-5 हजार में मल्टीपल डिजाइन के ऑप्शन देके बना देते हैं। So there are clients who come to me कि मैम आपके चार्जेस इतने हाई क्यों हैं? बाहर डिजाइनर्स तो 4-5 हजार में हमको 8-10 ऑप्शन दे देते हैं। So why not take logos from them? Why to take from you? But the difference is वो विजुअल लेवल पे काम करते हैं और हम एनर्जी बेस्ड पे काम करते हैं। Right, very true. Right, yeah. And if you know, design is visible,
but energy is invisible, and that's where the magic happens. Right, very true. That is an awesome thing what I have learned that thing. मैं कुछ और लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा. आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पॉडकास्ट के लिए और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए जो साइंटिफिक लोगों के बारे में जानना चाहता है. सो मैम, किसी भी मैं जनरलाइज बात करूं, रिगार्डलेस एनी इंडस्ट्री, रिगार्डलेस एनी डोमेन, सो वो की एलिमेंट साइंटिफिक लोगों के लिए वो क्या है? इन केस जरा पॉइंटर्स देना चाहें कि हाँ, ये हर किसी पे काम करेंगे रिगार्डलेस एनी इंडस्ट्री, ये कलर या ये कॉम्बिनेशन. So there is no specific color or combination for any specific industry. It depends upon person to person, mindset of the person, and nature of the business. I can't say कि इसी को येलो कलर जाएगा या इसको ब्लू जाएगा. Suppose you are into IT company or manufacturing company related to technology, you can use blue color, right? If you are doing something with fire element related work, you can use red color. If you are doing something, starting something new, you can use yellow color, right? For example, अगर मैं बोलूँ कि आप green color use करो, अगर बहुत ज्यादा green होगा तो आप trust level जो build होना चाहिए वो decrease हो जाएगा. Too much use of any one color is also not good, and too many colors is also not good. अगर हम एक ही लोगों में बहुत ज्यादा colors use करेंगे तो वो एक confusion create करेगा, stress create करेगा. Yes. ग्रेट 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 मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और जैसे आपने बताया साइंटिफिक लोगो या लोगो का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड यस, इट हैज टू बी डिजाइन, इट हैज टू बी गाइडेड फ्रॉम एक्सपर्ट्स लाइक यू. मैम, कितना इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है बिजनेस पे, एम्प्लॉइज पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कस्टमर पे इस ब्रांड का. मैम, मैं लास्ट सवाल एक लेना चाहूंगा साइंटिफिक लोगों के कंटेक्स्ट में. मैम, वो क्या मेजर्स हैं दैट इम्पैक्ट साइंटिफिक लोगो जब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या क्या वो मेजर्स लेने चाहिए बीइंग बिजनेस, बीइंग इनटू एन इंडिविजुअल? मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताएं. Yes. As I told you earlier कि साइंटिफिक लोगो बनाना ही इज नॉट द वन ऑफ द वे कि आपका बिजनेस चलेगा. साइंटिफिक लोगो के साथ साथ आपको आपके सिग्नेचर पे काम करना पड़ेगा. आपका लोगो जो हमने साइंटिफिकली डिजाइन करके दिया है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. यू नीड टू यूज दैट लोगो वेर एवर पॉसिबल. उसका बड़ा साइन बोर्ड बनाइए, यूज ऑल योर स्टेशनरी विथ योर न्यू लोगो. ब्रांडिंग के लिए नया लोगो यूज करिए ताकि वो जितना ट्रैवल करेगा उतना मैनिफेस्ट करेगा. डिजाइन योर विजिटिंग कार्ड यूजिंग द न्यू लोगो एज पर वास्तु, और उसको सर्कुलेट करिए. जितना आप उसको सर्कुलेट करोगे उतना वो ट्रैवल करेगा, उतना वो मैनिफेस्ट होगा. दैट इज वन ऑफ द वे. Along with this, yes, even your wristwatch is important. आप कौन सा wall clock यूज कर रहे हो, कौन सा wristwatch पहन रहे हो, दिस इज एडिशनल थिंग एडेड एज अ रेमेडी ताकि आपका जो सक्सेस लेवल है, जो आपको रिजल्ट आना चाहिए, वो और एम्पलीफाई हो जाता है और आपकी बिजनेस एनर्जी को भी और एम्पलीफाई करने में हेल्प करती है. ग्रेट 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 मैम. मैम, आपसे बात करके पर्सनली और फ्रॉम द योगीराम टीम की तरफ से मैम बहुत अच्छा लगा. आपने जिस तरीके से टेक्निकलिटी को वेरी सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया, इंपॉर्टेंस आपने बताया कि ये एक छोटी चीज नहीं है, इट इज द फेस, इट हेल्प्स इनटू मेनी फूड्स में इसके जो रहते हैं इफेक्ट्स आते हैं. मैम, बहुत अच्छा लगा. मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रॉम द योगीराम टीम, फ्रॉम द ऑल द व्यूअर्स ऑफ योगीराम, कि आप आगे भी हमें ऐसे ही गाइड करें विथ अदर मोडालिटीज. जब मैं बात करूं रिस्ट की बात करूं, न्यूमोलॉजी की बात करूं, ग्राफोलॉजी की बात करूं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से टैरो भी आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हो गया, एंड पीपल आर रिफरिंग टू दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ इवन नेम करेक्शन हो गया, एंड द विजुअल आइडेंटिटी, जो कि मेरे ख्याल से हर कोई अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना चाहता है एज एन इंडिविजुअल, एज ए ब्रांड, एज ए बिजनेस. सो मैम, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आगे भी हमसे जुड़े, हमें अपना प्रेशियस टाइम दे, एंड वी विल टॉक अबाउट all these modality as per your availability, as per your guidance. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. It really makes a lot of difference in my aura, and yes, definitely we'll be meeting together again and again. Thank you so much, sir. ग्रेट मैम. सो मैम, आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं विथ अ फाइनल मैसेज फॉर योगीराम व्यूअर्स, जो आप देना चाहेंगी, जो भी ये योगीराम पॉडकास्ट के व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैम, हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू विथ दैट
last message. I would like to give a message to everyone कि लोगो साइंस को just don't think कि खर्चा हो रहा है when you're going to some scientific designer or an expert. Just think you're doing an investment. If you're serious about your business, do invest in your business. That is a very important thing कि कोई भी modality को खर्चा मत समझिए. Just think you're doing an investment in your business on yourself and move forward. और scientific लोगो के नॉलेज से उसके यूज से आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाए. दैट्स द थिंग आई वुड लाइक टू गिव इट टू एवरीवन. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. ग्रेट मैम. मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड जैसा कि मैं योगीराम के व्यूअर्स को एक बार बताना चाहूंगा, यू कैन कनेक्ट विथ मैम, यू कैन गेट द गाइडेंस. जो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं. एंड यस, बहुत सारी चीजें हैं, नॉट जस्ट साइंटिफिक लोगो बट साइंटिफिक लोगो के और भी जो ऑगमेंटेशन होता है, जो भी उससे कनेक्टेड मॉडलिटीज हैं, मैम जिनमें एक्सपर्ट्स हैं, मैडम जिनमें मास्टर हैं, आप उन मॉडलिटीज के भी आप गाइडेंस ले सकते हैं मैम से. एंड मैम रियली इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू फ्रॉम द योगीराम टीम, फ्रॉम द ऑल द योगीराम व्यूअर्स. उन सब की तरफ से मैम थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम. आपने बहुत सारी चीजें बताई, आपने इंपॉर्टेंस बताया और वेरी सिंपल वे में आपने टेक्निकलिटी को समझाया. मैम इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल वर्ड्स. थैंक यू सर.